हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का जनरल साइंस लेसन नंबर 14 मेजरमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ हीट इस लेसन की एक्सरसाइज लेकर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है whom should I pair with? A group, B group. Temperature of a healthy human body 98.6 degree Fahrenheit. Boiling point of water 212 degree Fahrenheit. Room temperature 296 Kelvin. Freezing point of water 0 degree Celsius. B question. Who is telling the truth? A है the temperature of a substance is measured in joules. Answer false. The temperature of a substance is measured in Celsius, Fahrenheit and Kelvin. B question. Heat flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. Answer true. C question. Joule is the unit of heat. Answer true. Question D है objects contract on heating. Answer false. Objects expand on heating. E question. Atoms of a solid are free. Answer false. Atoms of a solid are tied to one another because of force acting between them. F question. The average kinetic energy of atoms in a hot object is less than the average kinetic energy of atoms in a cold object. Answer false. The average kinetic energy of atoms in a hot object is more than the average kinetic energy of atoms in a cold object. Question C है You will find if you search. उसमें फर्स्ट है A thermometer is used to measure temperature. The apparatus used to measure heat is called a calorimeter. Temperature is the measure of the kinetic energy of the atom in a substance. Answer average. The heat contained in a substance is the measure of the kinetic energy of atoms in the substance. Answer total. Second question है Nishigandha kept a vessel containing all the ingredients for making tea in a solar cooker. Shivani kept a similar vessel on a stove whose tea will be ready first and why? Answer Shivani's tea will be ready first. Large amount of heat is evolved due to the combustion of gaseous fuel in the stove, whereas the amount of heat evolved due to solar heat radiation is comparatively smaller. Therefore, the tea kept on the stove will be ready first. Question number 3. Write brief answers. A है Describe a clinical thermometer. How does it differ from the thermometer used in laboratory? Answer. A clinical thermometer has a narrow stem and a long bulb filled with mercury or alcohol. There is a small constriction in the stem above the bulb. When the bulb of the thermometer is held in the armpit or the mouth of a patient, the mercury or alcohol in the bulb rise in the stem. When it is taken out of a patient's body, the small constriction does not allow the mercury or alcohol from the stem to retreat into the bulb. Thus, his arrangement enables us to read the temperature of the patient's body at easy after the removal of the thermometer from his body. The clinical thermometer is graduated from 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius or from 95 degrees Fahrenheit to 108 degrees Fahrenheit at 37 degrees Celsius means 98.6 degrees Fahrenheit.
There is a red arrow mark which indicates the temperature of a healthy person. The bulb of a thermometer is long, the stem is thin, hence it increases the sensitivity of the thermometer. The surface of the stem is in the form of a magnifying glass and hence it enables us to see the thin thread of mercury clearly. The thermometer used in laboratory has wider range and does not have constriction like a clinical thermometer. क्वेश्चन बी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर व्हाट आर देयर यूनिट आंसर द एटम्स इन द सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन द काइनेटिक एनर्जी of the atom in substance is a measure of the heat contained in that substance. Temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atoms. If the average kinetic energy of atoms in two objects is equal, then their temperature will also be equal. The unit of heat in SI system is joule, while that in CGS units is calorie. Temperature is measured in unit of Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Question C है Explain the construction of a calorimeter. Draw the necessary figure. ये कैलोरीमीटर की फिगर है. देखो इसमें स्टेरर रहता है, थर्मामीटर रहता है, हीट रेजिस्टेंस लीड रहता है, हीट रेजिस्टेंस रिंग रहती है, इनर वेसल एयर कैविटी रहती है, ये आउटर वेसल है. ओके. A calorimeter is used to measure the heat content of an object. It has two vessels, an inner and an outer one. In this way, no heat can be transferred from the inner to the outer vessel or vice versa. Thus, the inner vessel is thermally isolated from the surrounding. The inner vessel is made up of copper. A thermometer for measuring the temperature and a stirrer for stirring the liquid in the calorimeter are filled in it. Question D है Explain why rails have gaps at specific distance. Answer This is kept to accommodate the change in the length of the rails with change in temperature. If this gap is not kept, then the rails will get distorted due to expansion in summer, which may lead to accidents. Explain with the help of formula the expansion coefficients of liquid and gas. Answer है expansion coefficient of liquid. A liquid does not have a definite shape, but it has a definite volume. So, we can define the volumetric expansion coefficient for a liquid as follows. यहाँ पे फॉर्मूला है V2 is equal to V1 into 1 plus beta into delta T. ये इक्वेशन नंबर 1 है. Here delta T is the change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volumes of liquid. Beta is the volumetric expansion coefficient of the liquid. Expansion coefficient of gas. The expansion of a gas is measured by keeping its pressure constant. This volumetric expansion coefficient is called the constant pressure expansion coefficient and is given by the following formula. V2 is equal to V1 into 1 plus beta into delta T. ये इक्वेशन नंबर 1 है. Here delta T is a change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volumes of the gas at constant pressure. Beta is the constant pressure expansion coefficient of the gas. क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल. उसमें ए दिया है व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस. फ़ारेनहाइट का हमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, उस टाइम सेल्सियस का टेम्परेचर डबल हो जाएगा.
तो देखो F इज इक्वल टू 2C, ये कंडीशन दी गई है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा तब 2 सेल्सियस टेम्परेचर डबल हो जाएगा। ओके, उसके लिए फॉर्मूला है F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5, ये फॉर्मूला है। अभी देखो ये फॉर्मूले में हमने F इज इक्वल टू 2C ये वैल्यू पुट कर दी। देखो ये F है, F की जगह हमने 2C वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला अदर जो है वो सेम ही है, सिर्फ F की जगह हमने 2C ये वैल्यू पुट कर दी है। सब्स्टिट्यूटिंग F इज इक्वल टू 2C। ओके, अभी देखो इसको सॉल्व करना है तो हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2C माइनस 32, जैसे हमने यहाँ पे किया है 5 मल्टीप्लाई बाय 2C माइनस 32, और C मल्टीप्लाई बाय 9 करना होगा। सो देखो C मल्टीप्लाई 9C मीन्स C मल्टीप्लाई बाय 9 ही है यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये 5 इस ब्रैकेट के बाहर है मीन्स, और इस 5 से हमें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। सो देखो 5 टू जार क्या हो जाएगा 10, 5 टू जार 10, उसके साथ C भी है, C राइट कर लिया। अभी माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया। अभी 32 5 जार 160 आता है, वो राइट कर लिया, इक्वल टू साइन, और ये 9C एज इट इज। अभी देखो 9C जो टर्म है उनको हम एक साइड में लेकर आते हैं, नंबर टर्म है उसको एक साइड में भेज देते हैं। तो 9C टर्म इस साइड में आ गई, 9C यहाँ पे प्लस है, 9C टर्म यहाँ पे प्लस है, उसको इस साइड में लेकर आए तो ये माइनस 9C हो जाएगा। तो 10C में से 9C माइनस हो गए तो एक ही C रहेगा, और ये 160 एज इट इज। और 160 देखो ये लेफ्ट साइड में था, हमने उसको राइट साइड में लेकर आया, ये यहाँ पे माइनस था और राइट साइड में आया तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 160 ही है। ओके, तो C इज इक्वल टू 160, तो F इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू 2 इंटू 160, देखो 2 इंटू C है तो 2 इंटू C की जगह हमने 160, देखो ये C की वैल्यू जो है ना 160 वो यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे 320 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वैल्यू आ गई। टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, जब हम सेल्सियस वैल्यू 160 लेंगे तब फ़ारेनहाइट वैल्यू उसके डबल हो जाएगी, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। क्वेश्चन बी है, bridge is made from 20 meter long iron rods at temperature 18 degree Celsius. The distance between two rods is 0.4 centimeter. Up to what temperature will the bridge be in good shape? ब्रिज कौन से टेम्परेचर तक गुड शेप में रहेगा ये हमें निकालना है। देखो यहाँ पे L1 इज इक्वल टू 20 मीटर दिया है, L1 माइनस L2 0.4 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर। Ti मीन्स इनिशियल टेम्परेचर है, Ti इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। लैम्बडा फॉर आयरन, लैम्बडा हमें आयरन के लिए 11.5 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस लेना होता है। तो देखो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा L1 डेल्टा T, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसमें हमें डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा टी के साथ जो लैम्बडा और L1 वैल्यू है उस इन दोनों वैल्यूज को हमें उस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये वैल्यूज यहाँ पे डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाकर डिवाइड हो गई, तो यहाँ में ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा L1 इज इक्वल टू, देखो L2 माइनस L1 वैल्यू जो है वो 4 इंटू 10⁻³ मीटर है, वो पुट कर दी। उसके बाद लैम्बडा वैल्यू 11.5 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट L1 वैल्यू जो है 20 मीटर वो पुट कर दी। तो इनके कैलकुलेशन के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा 400, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23। 400 को 23 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 17.39 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो TF वैल्यू निकालनी है, TF इज इक्वल टू TI प्लस डेल्टा T ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने TI वैल्यू और डेल्टा T वैल्यू पुट कर दी, तो 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 17.39 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ जाएगा 35.39 डिग्री सेल्सियस। द ब्रिज विल बी इन गुड शेप अप टू 35.39 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी से प्रॉब्लम है, at 15 degree Celsius, the height of Eiffel Tower is 324 meter. If it is made of iron,
what will be the increase in length in centimeter at 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर है, अभी देखो हाइट ऑफ आईफिल टावर जो है 324 मीटर दी गई है, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आ जाएगी 32,400 सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 माइनस 15 आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस लैम्बडा डेल्टा टी। अभी ये L1 इस ब्रैकेट के बाहर है, हम इन ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को N1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा, L1 इंटू 1 L1 आ जाएगा, L1 इंटू लैम्बडा डेल्टा टी, तो L1 लैम्बडा डेल्टा टी आ जाएगा, ये प्लस साइन एज इट इज। तो L2 को अभी देखो ये L2 यहाँ पे ऐसा ही है, L1 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, L1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाकर माइनस L1 हो जाएगा, तो L2 माइनस L1 ये रहेगा यहाँ पे, मीन्स इसको ही डेल्टा L बोलते हैं। उसके बाद राइट साइड में अभी L1 लैम्बडा डेल्टा टी है, तो L1 लैम्बडा डेल्टा टी एज इट इज राइट कर लिया। तो L2 माइनस L1 मीन्स लैम्बडा L इज इक्वल टू, ये अदर जो वैल्यू है L1 लैम्बडा डेल्टा टी वैल्यू पुट कर दिए, तो आंसर आ जाएगा 5.589। इसको ये किसके इक्वल है, 5.6 सेंटीमीटर के इक्वल है। Therefore, increase in length at 30 degree Celsius is equal to 5.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन D है, two substances A and B have specific heats C and 2C respectively. If A and B are given Q and 4Q amount of heat respectively, the change in their temperature is the same if mass of A is m. What is the mass of B? हमें B के लिए मास निकालना है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें गिवन क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू C है, स्पेसिफिक हीट ऑफ B इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 2C दिया है। अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू A is equal to Q, A is equal to Q है। अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू B is equal to QB is equal to 4Q है, दिया है ये सभी वैल्यूज। तो मास ऑफ A is equal to m is equal to m ही रहता है। ओके, मास जो है A का वो m है, उसको हम m लिखते हैं, मास मीन्स m। डेल्टा T है is equal to डेल्टा TB, डेल्टा T है is equal to QA अपॉन m इंटू CA। ओके, Q इज इक्वल टू mCT, T इज इक्वल टू QmC, और डेल्टा TB कितना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू QB अपॉन mB इंटू CB। देयरफॉर QA अपॉन ma इंटू CA, ये TA की वैल्यू है, डेल्टा TA, ये डेल्टा TB है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये क्या है, डेल्टा TA इज इक्वल टू डेल्टा TB है। ओके, ये डेल्टा TA, ये डेल्टा TB है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज QA इज इक्वल टू Q, इन दोनों में, ओके, इन दोनों में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, QA इज इक्वल टू Q वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, QB इज इक्वल टू 4Q, MA इज इक्वल टू M, CA इज इक्वल टू C, CB इज इक्वल टू C, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q अपॉन MC इज इक्वल टू 4Q अपॉन MB इंटू 2C, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें MB निकालना है, MB इज इक्वल टू 4Q इंटू M इंटू C डिवाइडेड बाय Q इंटू CA, ये मिल जाएगा। जब हम इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करेंगे, MB इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो MB इज इक्वल टू 2C, मास ऑफ B इज 2C। ओके, ये क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग मास 3 किलोग्राम रिसीव्स 600 कैलोरी ऑफ हीट, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, एक सब्सटेंस है, उसका केजी वेट है 3 kg, वो 600 कैलोरी इतनी हीट रिसीव करता है, उसका टेम्परेचर अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी, हमें निकालना है। तो 3 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम। हीट रिसीव्स मींस Q इज इक्वल टू 600 कैलोरी। ओके, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। Q इज इक्वल टू
m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q की वैल्यू पुट कर दी, M की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा T वैल्यू पुट कर दी। अभी C की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ ये 3000 और 10 ये दोनों जो वैल्यू है उनको हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों वैल्यूज उस साइड में शिफ्ट हो गए, वो 600 के साथ डिवाइड हो गए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई थे। ओके, तो क्या आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी देखो ये न्यूमरेटर में 2 जीरो है, ये 2 जीरो 600 की जो दो जीरो है वो 3000 के 2 जीरो के साथ कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 30 इंटू 10 रहेगा। सो 30 इंटू 10 की मल्टीप्लीकेशन की तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, और ऊपर ये 6 के 2 जीरो कट होने के बाद यहाँ पे 6 ही रहेगा, तो 6 अपॉन 300 ये आ जाएगा सी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट। ओके, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ऊपर 1 नीचे 5 एंड ये 0 50 हो गए, तो 1 अपॉन 50। तो इस 1 को हमने 50 से डिवाइड किया तो 0.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी। ओके, देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके।